And Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami has spoken to Tarun Prasad Chakma, the father of Tripura student Angel Chakma, who died in Dehradun. And during the phone conversation, he said, and I'm quoting, "This was a very tragic incident. Everyone is deeply saddened by it. We will take strict action in the matter, and those who committed this crime have already been arrested. One person was from Nepal. He is still absconding. We have announced a reward to catch him and have sent a team to nab him now. What could be more painful than this for a parent? We will ensure that the culprits receive the strictest punishment possible." I have also spoken to the Tripura Chief Minister Manik Saha, the Home Minister, the Defence Minister, and everyone has discussed this matter. Such incidents do not happen here. This is not the kind of environment here. We stand with you in this difficult time. We will provide you with all the possible assistance from our side. Let's in fact hear this conversation that Pushkar Singh Dhami has had with Tarun Prasad Chakma, the father of Angel Chakma. चकमा जी कैसे हैं तरुण जी? ठीक है। बहुत हमारा एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ। हम बहुत दुखी हैं इससे, और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और पांच लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है या कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है, और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहाँ पर भेज दी गई है पुलिस की ना। लेकिन चलिए, अब ये तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत दुखद है और हम बहुत दुखी हैं, मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको। और मैं समझ सकता हूँ आपका बहुत कष्ट है, परिवार में बहुत कष्ट है, और थोड़ा सा हिम्मत करिए। और क्या कहें, बहुत आपके लिए, एक पिता के लिए इससे ज़्यादा कष्ट और क्या हो सकता है ना। माता पिता के लिए आपके परिवार में बहुत कष्ट, बहुत दुख है, बहुत अनहोनी है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, और इन जो भी लोग इसके दोषी हैं उनको हम लोग कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। यहाँ मैंने उनसे भी बात किया था, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं डॉक्टर मानिक साह जी से भी परसों मेरा बात हुआ था, उनका भी फ़ोन आया था। और माननीय गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी, सभी लोगों ने बात किया है मुझे, है ना। तो बात कर रहे हैं इसमें, तो हम इसमें पूरी कार्रवाई करवाएंगे। आप बिल्कुल, मतलब इस बात के लिए तो कोई आपको नहीं करना, जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी वो होगी। और हम लोग पूरे परिवार के साथ हैं, हर तरीके से आपके साथ हैं, इससे दुख की घड़ी में हर तरीके से, है ना। सर मेरा एक ही विनती है सर। हाँ बताइए। उधर और भी बच्ची है सर नॉलेज का, नहीं किसी का साथ ना हो। नहीं नहीं तरुण जी, ऐसा यहाँ पर कोई भी माहौल नहीं है। और हम लोग इस पर जो है खुद भी, यहाँ पर मैं खुद भी देखूंगा, इस तरीके का यहाँ पर कुछ नहीं होता। यहाँ पर तो बहुत पूरे देश भर के बच्चे हैं, मतलब मुझे लगता है कि कई लाखों बच्चे बाहर के आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, सभी जगह के ना। और हर जगह का अच्छा इंस्टीट्यूशन यहाँ पर है, सब कुछ है। और ये जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है बहुत, और हम लोगों के लिए भी बड़ा कष्ट है, बहुत कष्ट है ना। और सच में बहुत कष्ट है, मतलब मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि बच्चों का इस प्रकार से होना और एक माता पिता के लिए क्या कष्ट होता है, मैं इसको महसूस कर रहा हूँ आपका। Let me take this across to my colleague Aman Sharma, who is now with us on the broadcast. Aman, there was a request that came from Tarun Chakma, the father of Angel Chakma. Of course, Pushkar Singh Dhami has spoken to him. The one appeal that he has made, that this sort of an incident should not be repeated, it should not happen to anyone else's son or daughter. Absolutely, Greha, and you heard the Uttarakhand Chief Minister speak to the father of Angel Chakma, and one very important point that he said, that both the Home Minister, Mr. Amit Shah, as well as the Defence Minister, Mr. Rajnath Singh, have spoken to the Uttarakhand Chief Minister on this particular issue. So that also shows that the centre's top leadership is cognizant of this particular case. It's concerned about what has happened there, and has spoken to the Uttarakhand Chief Minister asking for swift justice. And that is what the Uttarakhand Chief Minister is also telling the family. But that all said, Greha, was there a delay in the probe of this case? The timeline that we have access at CNN News 18, see this particular attack, this assault happens on December 9th. On December 10th, the very next day, Michael, the brother of the deceased, who was injured at that particular time, files a complaint
but the FIR is only registered by the Uttarakhand police on December 12th, after delay of 2 days, delay of 3 days since the incident, delay of 2 days since the complaint was lodged. The first arrest, the 5 arrests that Mr. Dhami is speaking about, happened on December 14th. So only the arrests have happened over 5 days after the Angel Chakma was assaulted. So was there a delay in the start of the probe? Did the police not take it that seriously that they should have? This is also one complaint of the family, that, you know, when they filed a complaint, the FIR was not immediately lodged. The arrest took time. Also, the main accused in this case, the sixth accused, and his details which we have accessed, his name is Yagyaraj Avasthi. He is still absconding. It's 20 days since that assault, and the main accused of the case, Yagyaraj Avasthi, is still absconding. The details we have from the Uttarakhand police is that he belongs to Kanchanpur in Nepal, but he is very much, his family, his father is very much based in Haridwar. This person also was based in Haridwar. He used to come to Dehradun to meet one of his friends who's one of the accused in this particular matter as well. So this main accused, who's carried out perhaps the, he inflicted the most serious injuries on Angel, is still absconding 20 days after the incident has happened. So I think Uttarakhand police has also a lot to answer. Why the delay in the FIR? Why the delay in the arrest? In fact, some are asking that just a reward of rupees 25,000 has been announced by the Uttarakhand police on the main accused who's absconding for 20 days. Why such a small reward? Why not a bigger reward? What is Uttarakhand police really doing to nab the main culprit in this case? So a lot of focus on the Uttarakhand police, behavior and action in this regard. And also, Aman, this point that you made, that the police action was only registered 5 days after this crime really was committed. I was speaking to Tarun Chakma only last evening, and he mentioned that there is no help whatsoever from the college or hostel authorities. What about that? Is the Uttarakhand government also going to be questioning the establishment? Well, yes, you see, he was a student of the Uttaranchal University. I am told he was pursuing his MCA there, and so he's a final year student. Some people, his colleagues, have told the police that he was a very, very bright student. So no help coming from the college or the university is also extremely unfortunate, because so far what we have seen is that a lot of promises are being made to the family, but nothing actually is being delivered to the family, and that is the family side of things. What happens now with both the chief ministers, and then 2 days ago, this call which came from Manik Saha, the Tripura chief minister, to the Uttarakhand chief minister, has really spurred the action now. Now you see a lot of conversation over it, and now Pushkar Dhami himself saying that the Home Minister, Mr. Amit Shah, the Defence Minister, Mr. Rajnath Singh, have also called him up on this particular incident. So will the help come? Will the sixth accused be nabbed? Will the family be helped? And in all the ways possible, Griha, that remains to be seen. Right, absolutely, Aman. Thank you so much for all of those inputs. We also have a very special guest who's joining us on the broadcast. Shanti Bikash Chakma, who is the Chakma community head in Tripura, is with us. शांति विकास जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. बहुत ही मुश्किल समय है आपके पूरे समुदाय के लिए, एंड ऑफ कोर्स एंजल चकमा के परिवार के लिए. उनके परिवारजनों से हमारी बात हुई है. वो एक ही अपील करते हैं पूरे देश से कि जस्टिस मिले एंजल चकमा को. सबसे पहले मैं मेरे तरफ से और मेरे समाज के तरफ से आपका चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका चैनल से माध्यम से मैं सारा देश को, जो देशवासी है, उनको हमारा जो बात है पहुंचने का मौका दिया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं. तो कल हम गए थे एंजल चकमा का घर जो मकमारा में है. उनके पिताजी से मिले थे. उन्होंने एक ही बात बोला है कि जो इंसिडेंट वो तो हम लोग मान नहीं सकते, लेकिन ये नहीं भी होना चाहिए. तो ये बहुत दुखद घटना है, और वो एक ही मांग कर रहे हैं कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, और ये भविष्य में ये नहीं होना चाहिए. जी शांति जी, अभी पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर, उनकी बातचीत भी हुई है तरुण प्रसाद चकमा जी से. क्या उम्मीद है अब आपको, क्योंकि उन्होंने ये बताया है कि होम मिनिस्टर भी बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टेड है इस मैटर में. उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से भी बात की है. तो यूनियन मिनिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व है, और वो इंश्योर कर रही है कि एक्शन हो, एग्जेम्पलरी एक्शन हो. ऐसा सबक सिखाया जाए इन लोगों को जो परपेट्रेटर्स हैं, जिन्होंने ये क्राइम किया है, ताकि आगे लोग इस तरह के रेशियल स्लर को जोक की तरह भी आगे ले जाने के पहले 10 बार सोचें. बिल्कुल.
उम्मीद तो है, मुझे लगता है ये सब कार्रवाई होगा, भरोसा भी है हम गवर्नमेंट के ऊपर। और ये जो दूसरे जो केस होता है, इसके ये दूसरे जो मर्डर होता है, जो इंसिडेंट होता है, उस घटना से ये घटना संपूर्ण अलग है। देखिए, ये जो घटना होती है, ये हम तो कंडेम करते हैं, तो क्योंकि ये जो घटना हुआ है, ये इसके साथ रेसिज्म भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट के लोग देखने में थोड़ा अलग दिखता है बाकी जो देशों से। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम ऐसा अपराध करें। तो हम लोग चकमा लोग हम लोग सबसे हमको अपना प्राउड फील करते हैं, हमको अपना भारतवासी बोलने में। तो ये जो घटना हुआ है, हम आशा करते हैं कि ये सब कार्रवाई हो और सजा भी सख्त मिले। जी शांति जी, जो बात आपने कही है, और हमारे पास एक सीसीटीवी फुटेज भी हमने मैनेज किया है एक्सेस करने का, जो उस जगह उस घटना को एग्जैक्टली बयां करता है, क्योंकि हमें ये पता चला, और ये हमने उनके फादर से जब बात की, उनके भाई का भी बयान आया है कि कैसे अनप्रोवोक्ड था ये सब कुछ। महज सब्जी और ग्रोसरी खरीदने गए थे, रेशियल स्लर्स का सामना करना पड़ा। उन्होंने ऑब्जेक्ट किया ये बताते हुए कि भाई क्यों ऐसा कर रहे हो। उसके बाद उनके छोटे भाई पे अटैक होता है, उनको बचाने के लिए जब एंजल जाते हैं तो उन पे चाकुओं से वार किया गया। हाँ, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये सिर्फ एंगल चकमा के बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरा नॉर्थ ईस्ट का बात कर रहे हैं। जो इसको रुकना चाहिए। तो इसलिए इसको रोकने के लिए हमारे मांग है कि ये गवर्नमेंट एंटी रेसिज्म एक्ट लाए, और ये एंटी रेसिज्म एक्ट लाए, और ये पूरा तरीके से ये रेसिज्म जो है ये बंद हो जाए। जी, और बहुत ही ज़रूरी बात कह रहे हैं शांति विकास जी, क्योंकि हम भी देखते हैं कि लार्ज स्केल तरीके से एक कंसोलिडेटेड एंटी रेसिज्म लॉ हमारे देश में नहीं है। बहुत सारे सेक्शंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 15 हो गया, 14 हो गया, 16, 17, ये सब एक तरह से किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन से डील करता है। बट एग्जैक्टली ये लॉ की बहुत ज़रूरत है, सेंसिटाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बारे में क्या मांग करते हैं आप सेंट्रल गवर्नमेंट से? बिल्कुल हम मांग करते हैं जल्दी से जल्दी ये एंटी जो रेसिज्म एक्ट वो सेंट्रल गवर्नमेंट लाए, ताकि ये जो इस घटना में जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हो जाए, उनको कार्य से कड़ी सजा मिले। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके ये एंटी रेसिज्म एक्ट लागू हो जाए। शांति जी, जो लास्ट वर्ड्स थी एंजल चकमा की, जब वो अपने वो अटैकर से किसी तरह से बचने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने एक अपील की थी, वी आर नॉट चाइनीज, वी आर इंडियंस। कितना ज़्यादा दुखद है ये, जो जितना भी ये इंसिडेंट हमारे सामने आया है। अब एक हिंदुस्तानी को अपने फेलो देशवासियों को ये बताने की जरूरत पड़ रही है कि भाई हम भी इसी देश के नागरिक हैं। ये मुझे तो ये लगता है हमारा अपराध किया है कि हमारा छोटे नाक है, हम देखने में थोड़ा अलग है। ये कि हमारा अपराध है, ये तो हमारा अपराध नहीं हो सकता। हम सबसे ज्यादा हमसे गर्व महसूस करते हैं हम अपने आप को भारतीय कहने में। तो अगर एक ही देश में, एक ही गणतंत्र में, एक ही संविधान में रहते हुए ऐसा हो, ऐसा मतलब चाइनीज बोल ले जाए, कोई ये बोले जाए, वो बोले जाए, ये तो हो नहीं सकता ना। ये बंद होना चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूँ, मेरा समाज के तरफ से मैं कहता हूँ, ये जो नॉर्थ ईस्ट के बारे में ज्यादातर देश में, अन्य प्रदेश में ये जानकारी नहीं है। तो मैं खासकर उत्तराखंड का गवर्नमेंट से भी ये मांग करता हूँ, और त्रिपुरा गवर्नमेंट से भी ये मांग करता हूँ। ये यहाँ से बहुत स्टूडेंट वहाँ में पढ़ने जाते हैं जी, उत्तराखंड और सारा भारत में, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोई भी उत्तर यूपी, बहुत जगह से स्टूडेंट है त्रिपुरा या नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो इसलिए एक अवेयरनेस होना चाहिए वहाँ का पब्लिक को होना चाहिए। इस नॉर्थ ईस्ट के लोगों के बारे में वो लोग जाने, त्रिपुरा का लोगों के बारे में उन लोग जाने, और यहाँ का कल्चर क्या है उसके बारे में भी वो लोग जाने।
तो अगर ये इसके जानकारी नॉर्थ ईस्ट के बारे में और यहाँ का त्रिपुरा का बारे में अगर उन लोगों का जानकारी हो तो ये शायद ये घटना बहुत हो सकता है। जी ये घटना बहुत कम हो जाएगा मेरे जी, बहुत ख्याल ज़रूरी से। बात कर रहे हैं आप शांति जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड लेट्स